ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಜಾತಿರಹಿತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ ಈ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸುಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಈ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. ಅಂತಹ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದೇಶಿಗರಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕೆಳವರ್ಗದವರು, ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು, ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು, ಹೀಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಭೇದ ಭಾವ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶರಣರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀಳು ಎಂದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಇವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಎನೀಶೆಂದರೆ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಎಲು ದುರಿದು ನರ ಹರಿದು ಕರಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೊಡೆ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಶಿರ ಹರಿದು ಅಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗ, ಈ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗ ನಿನಗೇ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಿತಯ್ಯ, ನಿನಗೇ शरणेन्नुತ್ತಿದ್ದಿತಯ್ಯ. इस वचन में थोड़ा हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस दुनिया की लोगों को अगर ईमानदारी से, सच्चाई से जीना और दूसरों को जीने का देना, इसी के लिए 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी का बारे में जो सच्चाई का काम करते वक़्त, जो सबको एकजुट करने का काम करते वक़्त, जाति रहित समाज जब स्थापना करते वक़्त उनको कंडी मंचण्णा वर्ग के लोग
बहुत तकलीफ दिया जैसा इस वचन में मालूम होता है। फिर भी महात्मा बसवण्णा जी क्या बोलते हैं, हमारा बद पीछे कितना भी निंदा करो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, ऐसा बोलते हैं। और कितना भी कुछ भी चमचगिरी करो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आगे क्या बोलते हैं, यलु दुरिदो हड्डी, एक सच्चाई का जंग में हड्डी टूट गए, नस कट गए, तो भी मैं पीछे सच्चाई के साथ मैं कभी भी धोखा नहीं करूंगा। करड़ कुप्पड़ी सिदुड़े, पेट में से अगर कलेजा बाहर भी गिर गए तो अंदर का मालिक के साथ मैं सच्चाई के साथ लड़ते रहूँगा, समाज के लिए सभी वर्ग के लिए लड़ते रहूँगा। ನರಹರಿದು ಎಲು ನುರಿದು ಕರಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೊಡೆ ನಾನು ಧೃತಿಗಣನೆಯ ಶಿರ ಹರಿದು अट्टी ನೆಲಕ್ಕೆ बिद्दरे, अगर अचानक गर्दन कट गए, नीचे गिर गए, जब भी मैं नेल के बिद्दरे, लास्ट सच्चाई का थोड़ा तो जान रहे थे ना, उस वक़्त ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿನಗೇ ಶರಣೆನ್ನು ತಿದ್ದಿತಯ್ಯ, ನಿನಗೇ ಶರಣೆನ್ನು ತಿದ್ದಿತಯ್ಯ। देखिए ऐसा प्रधानमंत्री हमारा देश में रहते हुए भी आज क्या चल रहा है, जात के नाम पे, भगवान के मंदिरों के नाम पे सवेरे से शाम तक झूठ प्रचार फैलाना, ये पूरे मीडिया वालों को अपना कंट्रोल में लेके झूठ का विचार फैलाने का जो कर रहा है ना देश के अंदर, मैं तो समझता हूँ इस देश के लोगों को खुशी से जीने को नहीं आता। ऐसा जो गलत बाहर भाषण करते बहुत बड़े बड़े ये लीडर लोग और बड़े बड़े स्वामी लोग, लेकिन बसवण्णा का ये वचन हमको सोचना चाहिए, आँखों में से पानी नहीं खून आना चाहिए, खून। हमारा उन्होंने बसवण्णा जी कितना ईमानदारी के साथ लड़ते रहा, तो मैं ऐसे वचन बहुत है, ऐसे वचन बहुत है। इसीलिए हमारे भारत के सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस देश के अंदर जात पात का नाम मिट्टी में मिला निकाल के फेंकना, जात का नाम निकालना, ये कानून में रहने वाले लीडर लोग सुधरना पहले फर्स्ट। कास्टिज्म के ऊपर कुछ भी नहीं चलना, सिर्फ उनका व्यक्तित्व, उनका प्रॉपर्टी कितना है, उनका पूरा डिग्री क्या है, उनका हिसाब से आजकल हर इंसान को ये देना। और भगवान तो सबको एक ही है, ये बताया है हमारा महात्मा बसवण्णा जी बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के हिसाब से। और सबका शरीर ही मंदिर है बोले, ये पूरा सूरज और चांद कितना दिन तक रहेंगे ना, जितना दिन तक सच्चाई हो जाए। ये शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है। ये जब तक ये जो धर्म का विचार बोलने वाले लोगों को और राजकारणी लोगों को, इन लोगों की वजह से तो देश बर्बाद हो रहा है। ये इन लोग हमारे 25,000 शरणों का वचन है, ये लोग पढ़ना और देश का पार्लियामेंट में और राज्यों का विधानसभा में और राज्यसभा में ये शरणों का वचनों का चिंतन चलना चाहिए। ये भाई बोलते हुए आप सबको, अगर ये सच्चाई का हम जितना दिन जिंदा रहेंगे ना, उतना दिन अंदर का मालिक का साथ सच्चाई के साथ जीने का अगर कौन काम करते हैं ना, उन्होंने इस धरती पे पैदा होकर फ़ायदा होता है। सब खाना कौन दे रहा है ज़मीन पे पैदा, एक ही भगवान। हवा किसका है, एक ही भगवान का है। आसमान किसका है, एक ही भगवान का है। सूरज और चांद सितारे एक ही भगवान का है। बीच में का हवा, सब हम एक ही भगवान का, एक ही बड़ा मंदिर में हम सब है। ये वचनों में मिलता है। ये वचन पढ़िए, सब लोग समझिए, और जो अज्ञानता हमारा दिमाग में था वो कचरा बाहर निकाल के फेंकने ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे पुलिस स्टेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल, ये सब ज़्यादा होंगे। इसके बाद में ये ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार,
महात्मा बसवण्णा और हमारे पूरे शरणों का अनुभव मंडप का विचार आज सब हर गांव में अनुभव मंडप स्थापन कर लेकर ईमानदारी से चलने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। एक दूसरे को तकलीफ़ देने का गलत है वो। अगर इंसान को तकलीफ़ दिए तो भगवान को डायरेक्ट तकलीफ़ जैसा होता है बोलकर महात्मा बसवण्णा जी बहुत सारे वचनों में लिखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सबको अच्छा लगा। भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, उन सबको सबके मनों में ये विचार चले गए तो हमारा भारत देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है। खाली जबान से बोलना एक और चलना एक, ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है। चुनाव आने आए, इलेक्शन आए, वो आए, झूठा प्रचार करने वालों का हमारा भारतवासियों को सबको मैं विनती करता हूँ, ये झूठा प्रचार करने वाले, झगड़ा लगाने वालों को इनसे कितना दूर रखे उतना अच्छा होगा। इतना बोलते हुए मैं लास्ट में सबको मैं सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।